لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك له حجة لي حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وللحافظ أيضا أشرف ودلينا وعنا حتى تسكنه البكاء وعافية نفتحه فيها وتهيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہماری تربیت اولاد پہ والی جو بحث ہے انشاءاللہ اس کو ادامہ دیتے ہیں. اور لاسٹ سیشن میں ہم لوگ کا جہاں تک فاؤنڈیشن ٹینیجرس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے سنر کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ رکھنا ہے یا انہیں کس طرح سے ایک صحیح راستے پر چلنے کی ہمیں جو ہے وہ تعریف دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے تھے جس میں بھی کہ اپنے بچے کے ساتھ مثلاً وقت گزارنا یا بات چیت کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے مشغولی ہے وہ اور لطیفے وغیرہ استعمال کریں. بعض وقت بچوں کا جو ہے وہ دل بہلا رہے گا وہ ایک سمنیت پیدا ہو. تو یہ کہ بچوں کے مثبت رویے اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں اس کی تعریفیں کرنا. مثلاً جو کچھ بھی وہ اچھا کرتے ہیں اور جس طرح سے مثلاً کچھ کام کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ ہے ڈرائنگ بہت اچھی بنا رہا ہے یا کچھ اچھا پڑھ رہا ہے یا اس نے بیٹھ کے اسی وقت آپ کے بنا بولے جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کی تو یا گھر میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. اس طرح سے یہ سارے جو رویے ہیں جو مثبت رویے ہوتے ہیں بچوں کی طرف سے اس چیز پر کیا کرنا ان کی تشویق کرنا اور اس کو سراہنا. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں بچے اور والدین کے درمیان میں ایک بہترین بانڈنگ کا باعث بنتی ہے اور خود بچے کے اندر ایک الگ جو اس کا مزاج بنتا جا رہا ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگا, وہ پازیٹیو ہوگا اور وہ چیزیں سیکھے گا. ہم جس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے, جس طرح سے ہم ایک رابطہ بناتے ہیں, جس طرح سے ہم بہیو کرتے ہیں ویسے ہی وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اب ان چیزوں سے مسئلہ یہ کہ ہم اس طرح سے جو رویہ رکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارا ایک بچوں کی سوچ کا طریقہ بدلتا ہے. اور جب سوچ کا طریقہ بدلتا ہے جب تفکرات ان کے اگر ہمارا رویہ منفی ہوگا تو ان کے تفکرات منفی ہو جائیں گے. ہمارا رویہ مثبت ہوگا, ہماری روش مثبت ہوگی تو ان کے تفکرات جو ہے وہ مثبت ہوں گے. تو یہ چیزیں جو بھی ہیں یہ کیا کرتی ہیں بچوں کے اندر جو ہم پیدا کر رہے ہیں ان کی فکروں کو باصلاحیت بنا رہے ہیں, ان کی سوچ کو جو ہے وہ پازیٹیو کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیں اس ایج میں آ کر بچپن کی ہی ایج میں جو 7 سال کی بحث ہماری ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بچوں کو انتخاب کا موقع دے جس سے ان کی یہ صلاحیت بڑھے گی کہ وہ خود اعتمادی پیدا ہوگی اور وہ اچھے اور برے کو دھیرے دھیرے سمجھ کر پھر وہ صحیح ڈیسیژن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. والدین کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مثلاً 15 سال کا 17 سال کا 18 سال کا بچہ ہے اور کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس پہ اسے ڈیسیژن لینا ہے. مثلاً 10th بچے نے پاس کیا, ٹھیک ہے, 15 سال 16 سال کا بچہ ہوتا ہے. اب اس نے جب 10th پاس کیا تو کئی والدین ایسے ہیں کہ جو اپنی رائے کو بچوں پر مسلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ تم یہ نہیں لو, یعنی جو اسٹریمس آپشن میں ہوتی ہیں کہ وہ
آرٹس میں جائے، وہ سائنس میں جائے، یا وہ کامرس میں جائے، وہ یا کوئی ڈپلوما کر لے، وہ یہ کس اسٹریم میں جانا چاہتا ہے، ہم یہ پوچھتے نہیں ہیں اس سے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنی رائے کو اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ انجینئر ہی بننا ہے، تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، بیٹی ہے تو تمہیں ٹیچر ہی بننا ہے، تم آرٹس ہی جا کر لوگے، تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے، تم سائنس نہیں پڑھ سکتی، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تم فلاں چیز نہیں کر سکتی، تمہارا میتھس اچھا نہیں ہے، تم آئی ٹی وغیرہ نہیں کر سکتی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہے، بچوں کی اعتمادی کم کر دیتی ہے، اور دوسری یہ چیز کہ بچوں کے اندر چوز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ کسی بھی زندگی کے موڑ پہ کوئی چیز، کوئی فیصلہ اپنی زندگی کا نہیں لے پاتے. کیوں؟ کیونکہ خود اعتمادی نہیں پیدا ہوتی ان کے اندر. صحیح. تو ہم ایک وجہ یہ کہ ہم بچوں کو سمجھتے ہی نہیں کچھ، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں صرف ابھی تک. ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے لیے بڑے ہی نہیں ہوئے، اور جس سے وہ کیا ہوتا ہے ان کی اوپر جو ایک اصل غلط چیزوں کا اثر پڑتا ہے. یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی بڑے نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، یہ جو دور ہے مثلا جو 12 سال سے 18 سال، 21 سال، 20 سال کا دور ہے، اس میں شرعی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں یا آپ دوسرے لحاظ سے جو سن کے اعتبار سے بھی ہے، بہت بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی مذہبی فرائض اور الہی احکام کی ذمہ داریوں کا انجام دینے کی اس کی یہ عمر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اس دور کے اختتام پر بچے میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، انتخاب کرنے کی صلاحیت پوری طرح سے آ چکی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، پورے ہوش و حواس میں اللہ کی بندگی کے لائق ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے، اب جب وہ خود لائق ہو گیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ابھی تک نہیں آ پائی ہیں، یا وہ سمجھ نہیں سکتا، یا وہ انتخاب نہیں کر سکتا، یا وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. یہ چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کہ بچوں کو مثلا سوچ کی جو ایک قوت ہے، تو وہ بچے کی زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک کیا کیا سوچ سکتا ہے. ایک 5 سال کے بچے یا 8 سال کے بچے یا 10 سال کے بچے جب ہم سے بات کرتے ہیں، بالخصوص والدین کو اپنی اولاد کی صلاحیتوں کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ کس حد تک میچور ہو چکا ہے، کن باتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے، کن باتوں کو وہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بول چال ہے، مثلا جو بچہ کنورسیشن کرتا ہے یا ہم باتیں کرتے ہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دوسری مخلوقات سے مثلا برتر چیز ہے، جو ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے، جو ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ہماری جو صلاحیت ہے بولنے کی، ہم جو بولتے ہیں ایزیلی بات چیت ہماری ہو جاتی. ظاہر ہے دوسرے مخلوقات کے پاس جب وہ چیز ہماری طرح نہیں ہے، تو یہ چیز بھی کیا ہے، انسان کے افضلیت پر جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو چیزیں ہیں کہ دوسری مخلوقات سے ہم ممتاز رکھتے ہیں، کہ جو تربیت کا ایک جو محور بنا ہوا ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم بچوں کے خیالات، عقائد، ان کے معیار، ان کی دلچسپیاں، ان کی حرکات، ان کا کام کرنے کا طریقہ، اس سے جو ہے وہ مثلا متاثر کر سکتے ہیں. مثلا بات اگر بچہ دیکھیں، اگر 3 سال کا بچہ ہے، وہ بولتا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ ہی میں بھلے سے آپ کی اولاد ہو، لیکن آپ کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کے اندر کتنی ایبلٹی ہے، وہ کس حد تک کام کر سکتا ہے اپنے یا نہیں کر سکتا. وہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جیسے ہی یہ بچہ مثل بلبل بولنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک جو ہم کہتے ہیں نا، میرا بچہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا اسمارٹ ہے، اسے یہ چیز سمجھ جاتی ہے، اس کی ایج سے زیادہ اس سے وہ باتیں کرتا ہے. تو یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اس کی بات چیت کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا.
अब ये जो नशो नुमा के पहले दौर में वालिदैन को क्या चाहिए कि अच्छी चीजों से बच्चों को मुतारिफ करवाएं, ठीक है। मुनासिब माहौल उनके लिए पैदा करना, मुनासिब माहौल उनके लिए रखना, और यानी वही चीजें कि हम बेहतर से बेहतर चीजों को उसके लिए पहले बनाएं, अच्छी चीजों का मुतारिफ करवाना, यानी कोई भी गलत रास्ते पे हमें अपने बच्चों को नहीं दिखाना। हमेशा ऐसी चीजें अगर को मस्जिद ले जाया करे, मस्जिदों में ले जाया करे, अपने साथ क्रूज वगैरह में जाता है बेटा तो वहां जाया करे। बेटी है, बेटी को मसलन मजालिस वगैरह मेहमानदारी में हम जब जाते हैं तो वहां पे कई चीजों को सिखाना कि हम मेहमानदारी में आते हैं वो तौर पे हम किसी गेस्ट किसी के यहाँ हम जा रहे हैं, किसी को हम पहली मर्तबा अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और तो इतने सारे हमने कानून घर से निकलने के पहले बता दिए कि बच्चा परेशान गया और उसे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि मैं कहीं पर जाऊं, तो आजिज आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें वहां पर जाना है, देखो तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे बैठना है, तुम सलाम करोगे पहले जाकर वहां पर, और खामोशी से बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना है, फिजूल बातें नहीं करना है, और ये और वो दुनिया जहान का टॉयज नहीं खेलने हैं, उनकी चीजों को हाथ नहीं लगानी है। जब आप इतना सारा उसे बता दे, उसके सर पे एक प्रेशर आ जाएगा और वो क्या करेगा, किसी का ना उसे पसंद नहीं होगा, किसी के घर जाना उसे पसंद नहीं होगा। यही चीज आप बच्चे को लेकर जाएं और उससे पहले कहें कि आप गुड गर्ल बने रहना, या आप गुड बॉय बने रहना, आप अच्छे बेबी हो, आप प्यार से बैठना, मामा जो कहेंगे वहां पे आपको वो बातें सुननी है। आराम से हम दूसरे के घर पर जा रहे हैं तो वो घर जैसा माहौल नहीं रखना है। इतनी ही सी चीज अगर आप समझा तो उसे जा रही है प्यार से, उसके लिए समझ आ जाएगी। अब अगर जाकर उसको आंखों से भी जो है वो अगर तंबी कर देती हैं तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, अगर कुछ इस तरह से बच्चा करता है। बिलाखिर बच्चे बच्चे हैं, दूसरी जगह पर भी जाकर अगर शरारतें करते हैं तो ये कोई बेजा चीजें नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिन पे हमें ये हो कि मैं दोबारा इसे नहीं लेकर जाऊंगी, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कि मुनासिब माहौल उनके लिए तो फराहम करें ताकि बच्चों के जो जज्बाती और अच्छे चीजों की तरफ क्या करें, बढ़े। मिसाल के तौर पर सफाई, नेकी और सच कहना, मेहरबानी से पेश आना, वादे वफा करना, इस तरह की जो फितरी मसलन को मुनासिब जो है वो के जरिए मसलन हम उस चीज को उसके अंदर डाल सकते, ठीक है। अब ये चीजें जो हैं वो किस तरह से होंगी हम पहले भी पढ़ चुके कि जब चीजें वालिदैन में उसके अतराफ में चीजें होंगी, यानी मैं सच बोलती हूँ चीजें आएगी, क्या मुझे सच बोल, मेरा घर साफ सुथरा होगा, मैंने अपने बच्चों को और खुद को साफ सुथरा रखा, और उसका मिजाज ये बनेगा कि उसे गंदगी कभी भी पसंद नहीं आएगी। के साथ करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ मेहमान कोई अगर आ जाए, बेहतरीन तरीके से मैं जिरायत करती हूँ, तब भी उनके जाने के बाद भी आजिज़ी नहीं दिखाती। बाज रहिए वालिदैन के या लोगों के इस तरह से होते हैं कि हम सामने तो बहुत अच्छी पजीराई करते हैं, लेकिन जब ये लोग चले जाते हैं या उनसे आने के पहले इतनी आजिज़ी दिखाते हैं कि ना पूछो, यानी बिल्कुल ये क्यों आ रहे हैं और अभी हमें यहाँ जाना था या हमारा वो काम था और हमें इन्हें नहीं आना चाहिए था, या बिना बोले कोई अगर हमारे घर आ जाए बिना इत्तला दिए तो हमारा तो वावेला हो जाता है फिर घर में कि ये कोई तरीका है और ये है और वो है दुनिया जहान का। लेकिन जब मेहमान घर में आ जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से खंदा पेशानी से उनसे मिलते हैं, फिर जब वो चले जाते हैं फिर हमने एक हाहू वाला आलम मचाया हुआ होता है घर में कि बच्चा हर चीज नोटिस कर रहा है, ठीक है ना। कि मेहमान के आने से पहले आपने उनके नाम पर कितना ज्यादा रिएक्ट किया, अब मेहमान जब फिर से चला गया है उसके बाद हमने रिएक्शन देखी। जब वो लोग घर में थे तो मेरी मामा ने या मेरे बाबा ने बहुत
अच्छे से उनसे बात की, कुछ भी उन्हें पता नहीं चला, वो लोग खुश हो गया। इससे क्या असर पड़ेगा बच्चे पर कि वो मुनाफिकत सीखेगा, हमें से अच्छे मिलता है, लेकिन पीछे वो उनकी कुछ न कुछ बुराई कर सकता है, ठीक है। या मेहमानदारी को पसंद ना करना, कि मेरे घर में अगर कोई आता है तो ये बाइस जहमत चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये जो माहौल हम बना रहे हैं ये हमारे बच्चे की तरबियत पर असर आप और हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी छोटी रोजाना की जो रवैये हैं हमारे घर के, उसमें भी हम अपने बच्चे करते जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता हम सिखा रहे होते हैं। इसीलिए शायद मैंने पहले ही घर से के लिए इस तरबियत देने के लिए पहले वो चीज सीखना, हम जो सिखाना चाहते हैं वो अंदर मेरे अंदर होनी चाहिए। मसलन शराब की कोशिशें करें, मेहनत कर ले, मेरे बच्चे में नहीं आएगी जब तक मेरे अमल में फिर ये कि इस दौर में बच्चे कुछ चीजों की तरफ मैल ना होना, या किसी चीज से बच्चा जो है वो नफरत पैदा हो जाती है। इसी वक्त बच्चे की सोचने और तज्जिया करने की सलाहियत को मसलन हमें चाहिए कि वो क्या करे, सही मेयार और सही इंतखाब की तरफ आगे बढ़े। मसलन बच्चे को कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पर बच्चे को मसलन कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है या मतलब फुटबॉल है, अब वो फुटबॉल खेलते खेलते क्या हुआ है कि वो एक बार, दो बार, चार बार बच्चे से धक्का लग गया, बच्चों को खेलना पसंद नहीं, एक बॉल खेलने के लिए कहूँ क्यों आप उसकी नहीं पूरा है तो आप उसके लिए और वजह है, अगर कोई बहस करता है तो इस चीज पर आए निकाले, ठीक है। वरन जिंदगी का कभी तो जीतोगे कभी तो हारोगे, इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उस एंड ही हो जाए। अब ये सारी चीजें तो हमारी होती हैं, तो हम बच्चे के अंदर उस चीज को सही तरीके से डालें या करना, ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ माहिरीन ने मसलन किताबों में तर्ज अमल को कंट्रोल करने के उसूल पर जोर दिया है, ठीक है ना, कि उनकी चीजों को कैसे आप कंट्रोल करें। मसलन सजा, मसलन हौसला अफजाई, ये जो तरीका होता है हमारा बच्चों के साथ तो ये जो हौसला अफजाई है या हम बच्चों को सजा देते हैं, ये जो तरीकों के जरिए हम मसलन रवैयों को जो रवैया हम चाहते हैं उसी की तरह हम क्या करते हैं, बढ़ा रहे होते हैं अपने बच्चों को। मनफी रवैयों को हम कम करें, लेकिन सवाल ये है कि हमारे बच्चे तरबियत के इस जो तरीका है उनका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, उससे आप इतनी ताकत हासिल कर सकते हैं उसके अंदर चीजें डालने की, ठीक है ना। तो ज्यादातर वालिदैन क्या करते हैं, ज्यादातर जो है वो वालिदैन अपने मसलन जो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने और बात के लिए जो फुर्सत नहीं होती है उनके पास, ठीक है ना। मसलन जॉब करने वाले या फैमिली इतनी बड़ी है कि माँ घर में रहते हुए भी बच्चे तक रसीदगी नहीं कर पाती है, ठीक है ना। बातचीत ना करने की दूसरी वजूहत भी मतलब बहुत सारी हो सकती है, मसलन ये कि बात करने का मन ना हो वालिदैन का अपने बच्चों से, यानी मिजाज पर फर्क है कि हर वालिदैन या बाप या माँ शायद बात करना ना पसंद करती होगी क्या बच्चों से बात करना, या वालिद
ये होता है जो है वालिद वक्त नहीं होता नहीं होता या उसे शायद जरूरत नहीं लगती इस चीज की, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज ये कि बात करने का सलीका ही ना होना। आप बच्चों से किस तरह बात कर रही हैं, आपके अंदर वो सलीका ही नहीं। या ये कि बच्चों के सवालों के सामने मसलन लाजवाब हो जाना, यानी मेरा बच्चा ऐसा सवाल करता है कि खुद मुझे नहीं पता होता या वक्त तंगी होना, मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को टाइम दे सकूं, या बच्चों राय पर गुस्से पर काबू पाने में दुश्वार, ठीक ना। आपको पहले भी ये चीज बारहा की गई कि बच्चे का जो रवैया है, ठीक है ना, या ये कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बच्चा इस तरह से कुछ ऐसी हरकत कर रहा है कि मेरा टेम्पर हाई हो रहा है, अब उसको कैसे कंट्रोल करना है वो चीज मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। या ये कि बच्चों के सही बातों को कबूल करने अपनी कसर में मसल पहचान में कमी समझना, ठीक है ना। यानी कि हम बच्चों की बातों को कबूल करें, ये मुझे गवारा नहीं है। मैं छोटे बच्चे की बात कबूल करूं, बाज़ दफा ऐसी कई चीजें होती हैं कि जो टीनेजर्स है, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं, कुछ ऐसी बात भी करते हैं कि जो मेरे अंदर नहीं थी, मुझे नहीं पता थी, या मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे से ये चीज सीखी या मेरे बच्चे ने इस चीज को टोका, ठीक है ना। लेकिन चूं मैं माँ हूं, मैं नहीं सुनूंगी, मुझे नहीं पसंद, मैं अपने छोटे से बच्चे की बात पर सुनकर कैसे अमल कर सकती हूँ, ये चीज सही नहीं है। ये कि गुफ्तगू को बेकार समझना, यानी बच्चों की बातों को वैल्यू ना करना, हम उसे जो है वो बेवकूफ समझते हैं, हम उसे कुछ समझते नहीं है। तो उसके बाद ये नुक्ता कि बदलते वक्त और बच्चों के नामुनासिब रवैये के बारे में खदशात करना, ठीक है ना। यानी एज जब बच्चों की बढ़ती जा रही है तो जाहिर है बच्चों के रवैयों में तब्दीलियां आनी। मैंने पहले भी इस चीज पर ताकीद की कि आपका बच्चा जो 8 साल का था अब 16 साल का हो गया, तो 8 साल का बच्चे से जो आपको तवक्कुआ थी या जिस तरह से हमें आदत थी कि वो बच्चा हमारा ये करता था या वो करता था, या पढ़ाई में इसका दिल लगता था, या वो बाहर नहीं जाता था, या वो बहुत अच्छे से मतलब एकदम गुड बेबी बन के घर में रह रहा था, अब लेकिन 16 साल का बच्चा ना मेरी बात सुनता है, ना पढ़ाई में दिल उसका लगता है, ना मसलन वो कोई घर में काम कोई हेल्प करता है, ना वो बातें सुनता है, ना वो वक्त पर सो रहा होता है। तो ये सब जो रवैये बदलते हैं इसमें हमें खदशे पैदा हो जाते हैं कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, दरहाली कि वो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती है, वो एक उम्र का तकाजा है जो हर उम्र में बच्चे में तब्दीलियां आती है। तो ये कि मसल हमारे जो फन गुफ्तगू से बात करने का जो फन होता है ना, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं, तो इसका जो असर है ना वो हर मोड़ पर जिंदगी पे आ सकता है। मुझे बात करने की सलाहियत ही नहीं है मेरे अंदर, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता ही नहीं है कि अपने बच्चे के साथ किस तरह से ट्रैवल करना है, किस तरह से बात करनी है, ठीक है। वैसे एक शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है, इस मामले में परेशानी का जो सामना करना पड़ता है, तो यानी वो एक दूसरे से मसलन मौसर तरीके से बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। और यही मसला बच्चों के साथ बातचीत में भी पैदा हो सकता है। यानी जब हमें मसलन वालिदैन को ही एक दूसरे से अच्छी तरह बात करने का ढंग ना हो, करने का तरीका पार्टनर को जो है पाने कर सकते, तो मेरे बच्चों में कुछ कहाँ से आएगी, यानी मुझे फन गुफ्तगू और एक वालिदैन के लिए कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वालिदैन के लिए मखसूसन एक माँ के लिए
ये चीज बहुत जरूरी है कि उसे बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो मैं जब अपने घर में अपने बड़ों से बात कर रही हूँ, दिगर रिश्तेदारों से बात कर रही हूँ, अपने शौहर से बात कर रही हूँ, बच्चा देखता है कि मैं बात किस तरह से करती हूँ। मसलन आप जब बात कर रही होती हैं अपने बच्चे से, और अगर अपने बच्चे से आपने बात की तो मेरे बच्चे को मुझे कहना नहीं कि आपने पढ़ना है, तो आप कहें कि अजीजा आपका खेल का वक्त तो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, अब तो हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके कल हमें स्कूल जाना है। आप जब अपना लेसन करके जाएंगे तो आपकी टीचर आपसे हैप्पी हो जाएगी, मेरे बच्चे को जो है वो बहुत शाबाशी मिलने वाली है, और चलो शाबाश हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आज पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये जो तरीका है पढ़ाई की तरफ उसकी रगबत दिलाने का, या कोई भी काम आप इस जगह पर ले सकती हैं, तो ये तरीका होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने बच्चे से बात कर रही हूँ। तो इसी जगह पर अगर आप अपने बच्चे से बस तुम्हारा खेल खत्म कर दो, बहुत ज्यादा तुमने खा लिया है, सीधे से किताब उठा कर पढ़ लेना, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं होगी, तुम्हारे पापा को घर में आने दो, और आज तुम्हें बताते हैं कल अगर तुमने जाट सुनकर मैम की आई तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, घर में तुम्हें नहीं लिया जाएगा। क्या करेगा, उठाएगा, बेदिली से किताब उठा तो लेगा आपके घर से, लेकिन वो पढ़ने में उसका दिल नहीं लगेगा। लेकिन जब आप खुद बेहतरीन तरीके से अजीजा और जो है वो जानते हैं कि उसे पुकारेंगे, बेहतरीन मोहब्बत भरे लहजे और मोहब्बत भरे एहसास के साथ उससे काम करवाएं, तो वो बेहतरीन उस काम का भी रिजल्ट जो है वो आता है। तो अब ये जो मसलन बात करने की जो कुछ नुक्तात हैं जो आपकी बात को मौसर बनाते हैं कि आपकी बात का असर हो, कुछ नुक्ते हैं, कुछ क्लीनिंग चीजें हैं जो मैं यहाँ पर बयान करूंगी, और इसको अपनी जिंदगी में वाकई अप्लाई कीजिएगा, हतमन आपको जो है वो नतीजा निकलेगा। गुफ्तगू का मकसद इस्लाह हो, ठीक है, आपको जो बात कहनी है तरफ से, बच्चे से अगर कोई बात मनवानी हो या ये कि पढ़ाई करवाना है, तो आप उसकी एक बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपका मतलब, आपका मसलन मकसद अगर एक इस तरह से होगा कि हाँ वो ये चीज करे उसके लिए बेहतर हो, ठीक है ना, तो आपका तरीका भी अलग होगा। फिर ये कि गुफ्तगू में प्यार भरा लहजा होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से भी मैंने आपको मिसाल दी, और सही पढ़ना है और जगह का इंतखाब करें, यानी हमें कब और किस वक्त उस चीज को मनवाना है, कब और किस वक्त उससे, यानी मेरा बच्चा अभी सो कर उठा है और आप उसे कहें तो चलो उठो और फौरन अपनी सारी चीजें मुरतब करो, तो बच्चा जो है वो उल्टा रिएक्ट करेगा, आपका बच्चा जो है वो चिढ़ जाएगा कि अभी मैं सो कर उठा हूँ, मेरी माँ ने जो है फौरन मुझे अपने कमरा मुरतब करने के लिए बोल दिया। नहीं, आप उसे वक्त दें, उठे, फ्रेश हो, नाश्ता करेगा, कुछ खाए पिए, उसके बाद जब वो मूड में आ जाए बहाल हो जाए, उसके बाद आप कहें कि शाबाश मेरे बच्चे, अब ये कसीफी बहुत ज्यादा हो रही है, कमरा गंदा, चलो हम साफ करते हैं, ठीक है ना, तो ये तरीका होना चाहिए। तो फिर ये कि कमरे की सफाई रखना बहुत जरूरी है, दूसरी चीज है, ये चीज आप जो है वो दूसरे भी रिश्तों में अप्लाई कर सकती हैं, शौहर के साथ, घर में दूसरे ज्वाइंट फैमिली वालों के साथ, ये चीजें आप अप्लाई कर सकती हैं कि रवैये को बदलने में जल्दी ना करना। यानी अभी मैं हंसते हंसते बात कर रही थी और हंसते हंसते कोई ऐसी बात हो गई जो सामने वाले की मुझे बुरी लग गई, अब मैंने फौरन अभी रखना शुरू कर दिया, चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी जो है गलत फहमियां ये इससे बाहर हो जाते हैं। और फिर पांचवा नुक्ता ये कि गलतियों को कबूल करना और माफ करना। तो गलतियों को माफ करना और मसलन ये कि उनकी गलतियों को हम एक्सेप्ट करें और उन्हें माफ भी कर दें, तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसकी गलतियों को एक्सेप्ट भी करें या हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करें, और दूसरा ये कि हमें माफ करने में भी बहुत जल्दी करनी चाहिए कि हम
اگر سامنے بچے نے یا کسی اور رشتے نے ہمارے غلطی کر بھی لی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس چیز کو معاف کر دینا ہے۔ تو پھر یہ کہ الزام تراشی اور تذلیل سے بچنا، تو ہمیں کسی پر بلیم نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز جانتے بھی ہیں، مثلاً ہمیں کہ کبھی کسی نے یہ کہہ دیا یا ہمارے بچے نے یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ مجھ پر مثلاً کوئی بھی مثال آپ لے لیں اور ہم یہ کہیں کہ تم ہمیشہ مجھے جو ہے وہ غلط ٹھہراتے رہے ہوتے ہو۔ اب میں نے جیسے یہ بات کی تو یہ چیز جو ہے وہ غلط کی طرف چلی جاتی ہے کہ میں اس چیز کو کس طرح سے مثلا میں فوراً بلیم کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کبھی بھی الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے اور اس چیز کو سلجھا دینا چاہیے۔ کوئی چیز ہم اس کو جو ہے وہ طریقہ دوسرا اپنا سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم تذلیل کریں، تو سامنے والے کو نیچا کریں، سامنے والے کو ذلیل کریں، چاہے بچے کو چاہے ہم کسی اور کو یہ چیز کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جب چیز ہو جاتی ہے کہ ہم کسی اور کو نیچا گرانے کی یا اسے چھوٹا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم صحیح نہیں ہو، یہ چیزیں بھی کیا ہے ایک اچھا اثر نہیں رکھتی ہیں اور اس چیز سے فرق آ جاتا ہے۔ ہم جب اپنے بچے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ رویہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے اور بچہ اپنی عزت اپنی آنکھوں میں خود کھو بیٹھتا ہے، وہ خود کو ہمیشہ جو ہے وہ ذلیل و حقارت کی نیت سے دیکھے گا اور اس سے بھی اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی خود اعتمادی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نکات ہیں کہ جو ہمیں کیا کرنے ہیں، ایک دوسرے سے رویہ اختیار کرنے پر ہمیں کیا کرتی ہے، ایک بہتر اگر ہمیں بنانا ہے تو ساری چیزوں کا کرنا ہے، ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ تو کہ آج کا درس کرتے ہیں، اس کے بعد آگے کنٹینیو کریں گے، اگر کسی کوئی سوال ہو تو کریں گے، آگے کرتے ہیں۔ کرنٹ سوال نہیں ہے، ختم کریں گے یہ نکات لکھ کر رکھیے گا، آئندہ کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، چیزیں لکھ کر رکھیے کام آئیے۔ التماس دعا صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا حافظ۔